نیشنل کانفرنس کے پروونشل پریزیڈنٹ شوکت میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر خیر مقدم ہے آپ کا. جاننا چاہیں گے کہ جس طرح سے موجودہ صورتحال بنی ہوئی ہے, بزنس رولز کی بائیفرکیشن وہ بھی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے, اور لگاتار سی ایم کی طرف سے جو ہے باور کیا جا رہا ہے کہ ان کے پاس پاورز جو ہے وہ لیس ہے. تو ایسے میں سچویشن جو ایرپٹ ہوئی ہے, تو کہاں دیکھتے ہیں آپ کہ موجودہ صورتحال میں کس تناظر میں جو گورنمنٹ ہے وہ فنکشن کر پا رہی ہے؟ آپ کو معلوم ہے جب یہاں الیکشن ہوا تو عمر صاحب بھاری اکثریت سے اقتدار میں آ گئی. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے جو ری آرگنائزیشن ایکٹ 5 اگست 2019 کو پارلیمنٹ نے لاگو کیا, اس کے تحت عمر صاحب کام کر رہے ہیں, یو ٹی کے چیف منسٹر ہیں, بہت کم اختیارات ہیں. تو جو لوگوں کے توقعات ہے کہ ہمیں جو میسیو مینڈیٹ نیشنل کانفرنس کو ملا, تو عمر صاحب سے جو توقعات لوگوں کو جڑے ہوئے ہیں, نیچرلی جب تک ایک فل سٹیٹ نام ملے جو ارسٹ وائل ریاست تھی, جبکہ ہندوستان کی ساری ریاستوں میں مضبوط ترین ریاست جموں کشمیر مانی جاتی ہے, جس میں بدقسمتی سے بی جے پی نے, ان کی حکومت نے مرکز میں پارلیمنٹ میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا, یو ٹی بنایا, یو ٹی کے بھی 2 حصے کیے. لیکن بعد میں پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر آف انڈیا نے, ہوم منسٹر نے, اور جو اپیکس کورٹ آف انڈیا, سپریم کورٹ جس کو کہتے ہیں, وہاں ایک ایشورنس ملی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ایز سون ایز پاسبل ریاست کو بحال کیا جائے. اب اس کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک تھا ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہوا, ڈیلیمیٹیشن کے بعد دوسرا ایشو تھا کہ الیکشن ہو جائے, الیکشن ہو گئے سکسیسفلی. اب تیسرا جو ہے وہ ہے ریاست واپس ملنی. وقت ہو گیا ہے, ابھی کیوں نہیں دے رہے اس کا تو ہم جواب نہیں دے سکتے ہیں, یا تو اس میں آپ جو مرکز میں بیٹھے ہیں ارباب اقتدار وہ اس کا صحیح جواب دے سکتے ہیں. لیکن پی ڈی پی کے ساتھ ساتھ بی جے پی کا بھی یہ کہنا ہے کہ جو مینڈیٹ دیا گیا نیشنل کانفرنس کو وہ اس پر کھرا اترنے میں ناکام ہوئی ہے, اور اسی لیے بار بار جو اسٹیٹ ہوڈ کا ایشو ہے وہ سامنے لایا جا رہا ہے. تو کہاں تک اس کو آپ حقیقت سمجھتے ہیں, اور جو دیگر مدعے ہیں, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ نیشنل کانفرنس انصاف کر پائی ہے ان مدعوں سے جو مینیفیسٹو تھا؟ مجھے بتائیے, پہلے ایک بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے, بی جے پی جو کر رہی ہے ان کی ہاں میں ہاں پی ڈی پی کر رہی ہے, تو در پردہ تو یہ ایک ہی جماعت ہے. جہاں پی ڈی پی کا وجود کس طرح آیا, یہ ایجنسیوں نے کریٹ کی. کس طرح اس وقت جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ایم ایل ایز کو توڑ کر ایک ایسی حکومت بنائی گئی, شاہ صاحب کو سامنے لایا. یہ جو مرکزی پارٹیاں ہیں, ایجنسیز پارٹی, ان کو ہر وقت عوام رد کرتے آئی ہے. اس میں تو ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ نیشنل کانفرنس سے اس سے گھبرانے. لیکن ایک میں موٹ کوسچن آپ کو کر رہا ہوں. کاڈر مینجمنٹ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ایفیکٹو ایڈمنسٹریشن میں. اس کا مطلب ہے آئی اے ایس, آئی پی ایس, ہمارے جو باقی سینٹرل سروسز ہیں وہ ڈائریکٹلی ایل جی کے انڈر ہے. ڈیٹرنس کہاں رہے گی؟ اب وزیر اعلیٰ نے بھی ایک دفعہ کہا, جب میں پہلے بیوروکریٹ سے کہتا تھا کہ یہ مسئلہ ہے, وہ مجھے 4 وہاں سے لاتے تھے سلیوشن کہ یہ سلیوشن اے بی سی ڈی ہے, اس کو کیسے ہم حل کریں گے. لیکن آج جب میں بیوروکریٹ کو کہتا ہوں, وہ 10 ادھر سے الجھنیں ڈالتا ہے, الجھنوں کو پیش کرتا ہے. ہم کیسے اس طرح عوام کی خدمت کر سکتے؟ اس کے بجائے پی ڈی پی, دوسری پارٹیاں, سجاد لون صاحب کی یا اپنی پارٹی ہمیں کو سے, وہ کیوں نہیں جاتے ہیں جنہوں نے ان کو یہاں لایا کہ ریاست کے لوگوں کے ساتھ بھلا کرو, ریاست دے دو. جب ریاست واپس ملے گی تو پھر 4 سال کے بعد, 5 سال کے بعد جب ہماری حکومت کمپلیٹ ہو جائے گی, آپ کہو کہ ہم نے کیا کہا, کیا کیا. ہمارا جو منشور تھا, ہم نے منشور میں کیا کیا, ہم نے اس کو برابر کیا. یہ تو باتیں کرتے ہیں کسی کے کہنے پر, لیکن ہم پر امید ہے کہ چونکہ پرائم منسٹر آف انڈیا اور ہوم منسٹر آف انڈیا نے ایشورنس دے دی, ان کو ریاست واپس دینی ہوگی. اگر ریاست واپس نہیں دیں گے, نہ ہم لا اینڈ آرڈر کے ذمہ دار ہیں, نہ بائیسرن کے ذمہ دار ہیں جو پہلگام میں ہوا. گورنر صاحب نے خود کہا, ایل جی صاحب نے, میں اس کی ریسپانسبلٹی لیتا ہوں. تو اس وجہ سے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایک زبردست ڈراسٹک سٹیپس لینے تھے ٹو سیک دا پیپل ہو آر ایٹ دا ہیلم آف افیئرز, ہو فیلڈ
in maintaining the security at Pahalgam. तो आपके कहने का ये मतलब है कि चीफ मिनिस्टर वज़ीर आला के दफ्तर और ब्यूरोक्रेसी में एक खला पैदा हो गया है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। ये इख्तिलाफ की बात नहीं होती है। जब हमारा मिनिस्टर सेक्रेटरी से कुछ कहता है और सेक्रेटरी फेल होता है यह करने में, उसकी यही एक डेटरेंस है कि कैबिनेट मीटिंग हो जाए, आई कैन बी शिफ्टेड, दूसरा सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट लाया जाएगा, दूसरा डिप्टी कमिश्नर लाया जाएगा, एसपी लाया जाएगा, जहां अकाउंटेबिलिटी होगी। जब ये इख्तियार आप इससे छीन लेते हो तो इसको अकाउंटेबल क्यों ठहराते हो? अकाउंटेबल तो ठहराओ फिर एलजी साहब को, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को, जिसके तहत काडर मैनेजमेंट है, जिसके तहत लॉ एंड ऑर्डर है। हमारे पास जितना है काम कर रहे हैं। आज हमारे एमएलए साहिबान देखे जो एक जमूद 10 साल में जम्मू कश्मीर में था, आज जुड़े हुए हैं हमारे एमएलए। आप ही कवरेज करते हो कॉमन मैन से। आज हम जो ब्लॉक लेवल पर कामें होते हैं, रूरल डेवलपमेंट में है, डिस्ट्रिक्ट एपेक्स जो काम, वो तो हम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं। लेकिन एक जो बहुत बड़ा मसला है रियासत वापस करने का, उसमें अभी मरकज़ लतुलैल कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस देख रही है। एक वक्त आ जाएगी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस रिवोल्ट करेगी कि यह क्यों नहीं मिल रहा है, वो वक्त फासला करेगी, लीडरशिप तय करेगी। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो वजारतें आपके पास है तो काफ़ी खामियां जो है वहाँ पर मौजूद है उन शोबों में। ये तो जुनून था 10 साल का, तो हम में खामियां आप क्यों ढूंढ रहे हो? उन डिपार्टमेंट्स में खामियां हैं जिनको हल करने की जरूरत है। आप एक हर डिपार्टमेंट की बात करिए। आपको टूरिज्म सेक्टर लीजिए, उमर साहब कलकत्ता पहुंच गए, उमर साहब बम्बई गए, उमर साहब अपनी टीम लेकर दिल्ली गए, वहाँ से टूरिस्ट्स को जो उनकी ट्रैवल एजेंसीज हैं उनके साथ मीटिंग्स हो गई। आज देख रहे हैं कि टूरिज्म रिवाइव हो रहे हैं। आप R&B को लीजिए, हमारे मिनिस्टर जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है PWD, हर जगह रिव्यू कर रहे हैं, टार मैगडम पड़ रहा है। जो भी हमारे पुल कोलैप्स हो गए हैं उनके DPRs बन गए हैं, कहीं इनाग्रेशन के लिए वेट कर रहे हैं। आप PHE को लीजिए, उसमें एक हाउस कमेटी बन गई। हाउस कमेटी के जिम्मा रखा गया जो जल शक्ति, जिसको वो स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जल जीवन मिशन, और उसमें कंप्लेंट्स आ गई। एक हाउस कमेटी स्पीकर साहब ने बनाई, वो गाँव जा रहे हैं। मैंने अखबार पर पढ़ा, वो लोगों से एतराज़ात मांग रहे हैं। अगर कहीं किसी को शिकायत है, वो जब सामने एक क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी, पेमेंट्स रिलीज हो जाएंगी, इनाग्रेशन हो जाएगी, तो वो भी पुरानी ही लायबिलिटी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको सुधारने की कोशिश करें। आप हेल्थ सेक्टर को लीजिए, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर साहिबा है सकीना यतू साहिबा, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डायरेक्टर हेल्थ, बाकी जो भी मिशन डायरेक्टर है, दिन रात काम करते हैं। अकाउंटेबिलिटी सामने आ रही है, अस्पतालों पर छापे पड़ रहे, दिन रात मिनिस्टर वन। अब आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हुकूमत संभाली तो बुर्ज खलीफा शारजा की तरफ आप दूसरे दिन देखोगे। ये एक वो रियासत है जो टेल एंड पर है, जिसको बर्बाद करके रखा इन 10 सालों ने। लेकिन आपको पता था पहले ही, इलेक्शन से पहले ही, कि फेट क्या हो सकता है इस गवर्नमेंट जो मौजूद वजूद में आ जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो मैनिफेस्टो आपका था तो उसको पूरा किया जाना अभी भी बाकी है, क्योंकि जैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का मसला है, जो रिजर्वेशन का मुद्दा उठाया गया। हम तो उसमें फेल नहीं हुए। हमने जो कमिटमेंट्स रिजर्व ये अपने मंशूर में की, वो हमने 5 साल के लिए की। अभी हमारे 9 महीने हो गए। 5 साल के बाद आप हमारा जॉब कार्ड देखोगे, आपने यह कमिटमेंट की थी, यह पूरी की या नहीं की। आप हमें आज ही क्यों अकाउंटेबल ले रहे हो? 10,000 करोड़ हमारे बजट में कम करके फिर भी हमने गला दे दिया। फिर भी हमने विडोज़ के लिए 50 से 75 हज़ार जो है पेंशन वो किया। फिर भी हमने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ्री ट्रांसपोर्ट हमारे माओं बहनों और लड़कियों के लिए फराहम किया। जो अब हमारे जो गरीब हैं उनको शायद ये दिखता नहीं है, नज़र नहीं आता, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है। और भी आगे काम हो जाएंगे, क्यों नहीं हो जाएंगे? सबसे बड़ी बात है कि हमारी रिलेशन जो प्रेजेंट
एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हुकूमत है उनके साथ बहुत अच्छे हैं, वो बनाए रखे हमारे उमर साहब ने, बीट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, बीट आवर होम मिनिस्टर, बीट आवर अदर मिनिस्टर्स, वो जाते हैं स्टेट के लिए जो भी है बोलते हैं, पैसा आता है। परसों ही आपने देखा 10,000 करोड़ रुपया आ गया, जिसमें साधना टनल है, जिसमें मुगल रोड है। अगर उमर साहब के रिलेशन मरकज़ के साथ ठीक ना होते तो फिर यह मरकज़ मजाज थी, नहीं 10,000 करोड़ रुपए देते। लेकिन एक फेडरल स्ट्रक्चर के तहत हमारी रिलेशन मरकज़ के साथ बने हुए हैं, लेकिन बीजेपी से हम दूर हैं। हम बी टीम, ए टीम, सी टीम नहीं है, क्योंकि वहाँ पार्टी का मसला है। वो बीजेपी है और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जो लोगों के खून के रंगने के बाद हमारे से वजूद में आ गई। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा हमारे कायद डॉक्टर फारूक साहब, उमर साहब और सारी जो लीडरशिप नेशनल कॉन्फ्रेंस और काडर है उसके पीछे पीछे चलने को तैयार है। और वो दिन ज़रूर आ जाएगा जब जम्मू कश्मीर में फिर तरक्की और रोशनी का तुलू खुलेगा। तो एक जानिब से इलेक्शंस की डिमांड कर रहे हैं आप, जो बाई इलेक्शन, जो सीटें बाकी है जिस पे इलेक्शन होना मतलूब है, और दूसरी जानिब सिक्योरिटी सिचुएशन क्या आपको लगता है कि मौजूद है? क्योंकि हमने देखा कि हारवन में भी एनकाउंटर हुआ, हारवन के आउटस्कर्ट्स में, और इस तरह के वाक़यात जो है आए दिन रोनुमा होते हैं। देखो, अब एक बात मैं बताऊंगा, जब 90 में नागुफ्ता बे हालात हुए, 6 साल एक पूरा जमूद रहा। फारूक साहब ने जब बागडोर संभाली 96, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर दरहम बरहम हुआ था। हमारे मिनिस्टर, MLAs, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, वर्कर्स को मारा गया। फिर भी हमने इसको ऑन रेल्स लाया, पटरी पर लाया स्टेट को। हमारे पास कोई बड़ी बात नहीं। सिक्योरिटी जो है, अगर ये रियासत के तहत रहे, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी, ज़्यादा फीडबैक होगा कहाँ क्या होने वाला है। मरकज़ यहाँ डायरेक्टली लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं है। जो लोकल लीडरशिप है वो लोगों से जुड़ी हुई है, उनको लोगों का मिजाज पता है, वो जानते हैं कल क्या होने वाला है, क्या हो जाएगा। वो ज़्यादा तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मरकज़ को नेशनल सिक्योरिटी के हित में रियासत वापस करनी चाहिए, फुल फ्लेज्ड, जिसमें न लॉ एंड ऑर्डर भी यहाँ होना चाहिए, काडर मैनेजमेंट भी यहाँ, और फुल्ली ये जो रियासत 5 अगस्त 2019 को थी, ये उसी तनाजुर में रेस्टोर होनी चाहिए। तो मुजवज़ा इंतखाबात के लिए क्या तैयारियां हैं? किस तरह से आपका काडर जो है सरगर्म है? मौजूदा इंतखाब आप कहते हो बाई इलेक्शंस, देखो कानून के तहत 6 महीने के बाद इनको नोटिफाई करना था इनके इलेक्शन, नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो यह आप मरकज़ी लीडरशिप से पूछ सकते हो। जी हुई ये अनाउंस करेंगे, नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन इशू करेगा, हम मैदान में कूद पड़ेंगे, चाहे बड़गाम की सीट है, चाहे नगरोटा की सीट है। तो हम थोड़ी शाय है इलेक्शन लड़ने से। ये प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी है, सन 1947 से हम इलेक्शन लड़ते आए हैं, तो हम थोड़ी डरते हैं इलेक्शन से। हमारे राज्यसभा के 4 सीटें वैकेंट हैं। कौन से मुहरिकात है ये राज्यसभा का इलेक्शन नहीं कराते हैं इन सीटों का? या तो ये डरते हैं कि राज्यसभा में इनकी और मेजॉरिटी होनी चाहिए ज़्यादा मजबूत। तो इसलिए यहाँ पूरा पता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कम से कम 2 सीटें कश्मीर तो ले हीगा, और जम्मू की 1 सीट पर भी हम दावादार हैं, एक बीजेपी लेगी। तो क्यों नहीं हो रहा है? कैंडिडेट्स का इंतखाब हुआ है? कैंडिडेट्स नहीं, ये एक उसूल है, जब भी इलेक्शन की नोटिफिकेशन निकलती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हर ऑर्गेनाइजेशन का बैठता है। हमारा भी पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारा कोर ग्रुप है जिसकी सरबराही फारूक साहब करते हैं। उस वक्त एक मीटिंग शॉर्ट नोटिस पर बुलाई जाएगी एंड इट विल बी डिसाइडेड कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कौन राज्यसभा का कैंडिडेट होगा, कौन नगरोटा और कौन बड़गाम का कैंडिडेट होगा। तो उसमें लिए कोई परेशानी हमारे लिए नहीं है। लेकिन मैं वाजिया ये कहना चाहता हूँ, यहाँ जो बाकी पार्टियाँ हैं, चाहे PDP है, चाहे पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, चाहे दूसरी आम आदमी पार्टी या बाकी पार्टियाँ हैं, आज जो हम ये मुसीबत देख रहे हैं ये उनकी देन है।
इन्होंने हमें इस मुसीबत पर पहुँचा है। अगर क्या साउथ पोल और नॉर्थ पोल की अलाउंस नहीं करते, अगर यह मोदी साहब को बड़ा अंकल नहीं बोलते और उसकी सीट से उसकी गोदी में बैठे पार्लियामेंट में, आज ये दिन हमें देखना नहीं होता। लेकिन मैं कश्मीरी लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को सलाम पेश करता हूँ। वो जानते हैं, उन्होंने नब्ज़ को पहचाना है, उन्हें पता है कि असली कौन है जिन्होंने हमें इस दाने पर, और कौम उनको इस गलती के लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो हमारी जो लीडरशिप है वो मुनज़्ज़म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस काम कर रही है, घबराने की कोई परेशानी नहीं है। थैंक यू। तो ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रोविजनल प्रेसिडेंट शौकत मीर साहब, जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कारकर्दगी पर तबसरा किया। वहीब खान के साथ न्यूज़ 18 के लिए सिरनर से मुदस्सर कादरी।